Hello everyone, Artist Rakshita now presenting you a medieval history related topic which is the Bhakti movement in India. Started in 8th century to 18th century, and I also give you the review of my Viva. The topics which I cover are background movement of South India to emergence in North India, factor influencing to this which are political, economic and social, hours and 9 hours of Bhakti traditions to Lingayat, the Vishiva traditions, poet and saints, temples, sacred books, changes after the movement and other things like promotions and limitations. It was very important movement in India. It's not only about the revival of the movement to confine the religion, but also focus on valid aspect of society. Like anti-social thing should be discarded from the society. We have learned in the Vedas that this is described in the Varna system that our jobs are divided into four parts like Brahmana, Kshatriyas, Vaishyas and Sudras, which are created their work according to their interest. But after some times, it is like the discriminative thing by the movement, by the people who make it. So this was the reason behind the Bhakti movement which should be came into India. In first phase, spreading of Brahmanical ideas, composition, compilation and preserving of Puranic texts written in simple Sanskrit which is accessible by women and Shudras who generally excluded Vedic learning. In second phase, Brahmins started accepting beliefs and practices of other social categories, which reconstructed through a continuous interaction between great Sanskrit Puranic traditions and later traditions in throughout the country. People become humble by studying philosophical texts, increase merits of karma and spread of humanity. During 8th to 18th century, many new gods and goddesses were visible in sculpture and texts. Worship of deities like Vishnu, Shiva and goddess visualized or depicted in various forms. I also used to write about the monotheistic movement which is included Kabir Das and Guru Nanak Dev. I focused upon mainly Shaivism and goddess because in sense or counting of temples, ideals according to historian research, there were lots of temple of Shiva in the India than the Vaishnavism, Buddhism or Jainisms. And also when we intensively practice about the Shaivism, we do create a respect toward goddess as the source of energy. I also write about the Manikarnika Ghat by my own, which is the most famous place for celebrating the dead called as Shamshan, managed by the Dome community who gained power from goddess. Devotees believe that there is presence of Lord Shiva. Tantrism and Aghoris practices done here. Aghori come from ceremony after that to put ashes of deaths over their body for playing Masan Holi. Tantrics chant their mantras here. Book Garud Puran, the book of death, teachings is the exception of truth of life once as the process, like it's meet of Atma with Paramatma. Bhakti means if we use our emotions and try to reach the ultimate, then we do the bhakti. It was accepted through salvation, means moksha, which is the ultimate reality of the religion. To unite with God, as said by the Lingayat, which was started through Karnataka by Basavana, a Brahmin priest. They encourage to have post-puberty marriage and widow remarriages system. There were lots of temple of Hinduism also in abroad. Hinduism is not the religion. Its original name is Sanatana Dharma, means internal law. The major portion of the source is based upon primary as well as secondary sources. I used to create a questionnaire for the priest and do the survey. Read out the books related to this and listen the podcast, research websites, etc. I tried to make this project in very unique way, like I cut down the helmet sheet and pasted it into the borders. I tear up the old newspapers and burn it and stick on the project to show the old things. I also create acrylic paintings which show my creativities. First of all, setting important milestones and highlights, writing down first my project goals by maintaining a clear grasp on reality, shared my ideas to conclude with my teacher,
I'm very much thankful to my history teacher as she helped me a lot for the subject. Now it's time to tell about the review of my Viva. Oof, I prepared a lot. I work hard for it. ये वही दिन था जिसके पहले हम लोग को बहुत बार बता चुके थे कि हमारी जो एक्सटर्नल आने वाली है वो बहुत ही थोड़ी स्ट्रिक्ट रहेगी, तो संभल के जवाब देना है और पूरा जवाब देना है। तो सुबह के 10 बजे थे अप्रॉक्सीमेटली और मैं वाइवा रूम के अंदर गई and I wish good morning to my external teacher and passed a smile, but she doesn't react it. Normally she said to me to sit and I said thank you ma'am. फिर उनने मेरे प्रोजेक्ट को देखा, मेरे टॉपिक को पढ़ा, उनने पूछा कि तुम्हारा टॉपिक भक्ति से रिलेटेड है या फिर भक्ति मूवमेंट से। इनिशियली आई यूज टू फोकस्ड ऑन बोथ द टर्म, लेकिन मैंने कह दिया यस मैम द भक्ति मूवमेंट। उनने मेरे सारे पेजेस को देखना शुरू कर दिया, शायद उनको पसंद भी आए होंगे, लेकिन उसके बारे में उनने कुछ रिव्यू नहीं दिया। उसके बाद उनने मुझसे ये पूछा कि आप ये बताइए पोएट्स और सेंट्स के बारे में। तो मैंने डिस्क्राइब किया पोएट्स और सेंट्स के बारे में। उनने ये भी पूछा कि उनका क्या रोल प्ले हुआ है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैंने बताया रोल प्ले हुआ है कि आदि शंकराचार्य ने होस्टेड द डिबेट ऑल्सो, और जो पोएट्स थे वो एज अ गुरु भी रोल प्ले किए हैं। उनने पोएट्स के नाम पूछे, डिफरेंट पोएट्स के, देन आई आंसर इट। I also told about the bhakti importance, why it is come and how it is come. फिर उन्होंने मेरे सारे पेजेस को देखा। लास्ट में सेक्रेड बुक्स के सेक्शन में मैंने महाभारता एंड रामायण को एक ही पेस्ट में पेस्ट करके रखा था और उनने ये क्वेश्चन पूछा। जो वैदिक बुक्स भी मैंने इंक्लूड करके रखी थी उसमें, इसमें तो डिस्क्रिमिनेशन दिया है, महाभारत में तो बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन दिए हैं। तो मैंने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की लेकिन वो रॉन्ग था। लेकिन फिर मैंने मैम को बताया कि मैम आई डिडंट स्टडी मोर अबाउट द महाभारता। देन शी नॉर्मली आस्क्ड कि आप ये बता दीजिए कि हाँ इसका कोई एग्जाम्पल हो जो तुम्हें पता हो, याद आ रहा हो। तो मैंने कहा द्रौपदी मैम, उनका वुमेन डोमिनेंस में आती हैं। तो उनने एक और एग्जाम्पल अपनी तरफ से दिया, क्या एकलव्य के बारे में तुमको पता है? मैंने कहा येस मैम, ही बिलोंग टू लोअर कास्ट। उनका बाकी इससे पहले वाले क्वेश्चंस में उनने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, लेकिन यहाँ पे आते हुए उनने ये ऐसा क्वेश्चन पूछा मुझसे कि वाई यू हैव पेस्टेड दिस पिक्चर। It is the wrong thing to paste such things, as you said, Bhakti created the social reforms, but there is lot of discrimination in this. तो फिर मुझे लगा कि शायद मैंने सही में कोई मिस्टेक की है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो उनने यही साइड वे टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया उनने। फिर दोबारा उनने मेरे पेजेस को टर्न किया, वापस सामने वाले सेक्शन में आई। वहाँ पे एक टर्म था मोक्ष, उनने उसके बारे में मुझसे पूछा। देन उनने ये भी कहा कि क्या ये सही में पॉसिबल है? मैंने कहा येस मैम। तो उनने पूछा एक एग्जांपल दो, मैंने एग्जांपल दिया। देन फिर उनको एक पेज दिखा जिसमें मैंने लॉर्ड जगन्नाथ और उनके ब्रदर सिस्टर के साथ फ़ोटो पेस्ट करके रखी थी। तो उनने फिर ये क्वेश्चन पूछा दोबारा महाभारत की तरह कि तुमने ये क्यों पेस्ट करके रखा है। तो मैंने फिर उसको एक्सप्लेन करना शुरू करा। उनने फिर नो कहा, नो आई एम नॉट आस्किंग अबाउट दैट, आई एम आस्किंग अबाउट दिस सच पर्टिकुलर थिंग, सो आई ऑल्सो यूज टू एक्सप्लेन दैट टाइप ऑफ थिंग। फिर उनने कहा कि नहीं नहीं ये तो मुझे दिख रहा है ये सारी चीज़ें, लेकिन क्यों लगाया तुमने? तो मैं उस टाइम पे शांत रह गई। फिर उनने ये भी कह दिया कि इट इज़ वेस्टेज ऑफ पेपर। पर्टिकुलरली वो जो सेम पिक्चर थी वो हमारे एनसीईआरटी बुक में भी पेस्टेड थी, सेम टॉपिक में जो मैंने चूज़ किया था। लेकिन उस टाइम पे मैं चुप रही, क्योंकि ऐसी चीज़ें एक्सटर्नल को बोलना जो उनको बुरी लगे, डेट इज़ नॉट द राइट थिंग विच आई थिंक सो। उनके एक क्वेश्चन में ही 2-3 टॉपिक्स के आंसर छुपे हुए थे। हमारी एक्सटर्नल बहुत सीनियर थी, उनको लॉट ऑफ एक्सपीरियंस भी था। उन्हें मुझसे टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जिसका मैंने 8 का जवाब दिया, 2 में मैं अटकी। लेकिन फिर मैंने वाइवा से जैसे ही मैं बाहर निकली मेरे को बहुत सारी चीज़ें याद आने लगी। ये भी सोची कि मैं बहुत सारी चीज़ें मिस कर गई थी जो मुझे उस टाइम पे एक्सप्लेन करनी थी, मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आई। फिर मैंने मैम से कन्वर्जेशन किया, अपनी फैमिली टीचर से कन्वर्जेशन किया, उनने मेरे को आंसर भी किया उस बारे में, उसके बारे में बताया। और फिर ये भी कहा कि फॉरगेट दैट थिंग, जो भी मेरे को हर्ट हुई है उसको भूल जाओ, आगे के अपने थ्योरी एग्जाम पे ध्यान दो। As I am thinking about that, is I have to maintain the particular stuff behind this module or not? But I am still not satisfied from this Viva. However, मैं जहाँ अटकी थी वहाँ के आंसर जानने के बाद मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। एटलीस्ट मुझे नॉलेज तो है इस बारे में। इस एक्सपीरियंस से मैंने बहुत कुछ सीखा।
लाइक अब कैसे प्रिपेयर रहना है, कैसे आंसर्स देना है। लाइक वो हमारी थिंग्स को रॉन्ग भी कहें फिर भी अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को सही लाना है। I also said to her that I also do the questionnaire but she ignored it. उनका नेचर हमको भी थोड़ा ठीक नहीं लगा कि वो थोड़ा रूड भी थी, स्ट्रिक्ट भी थी और एकदम फेस से ब्लैंक थी। मे बी ये उनका नेचर होगा, लेकिन एज अ एक्सटर्नल वो हमको सिर्फ टेस्ट करने ही आई होंगी। मैंने बाद में उनसे बात करने की भी कोशिश की, अपने बारे में बताया, लेकिन वो बोली हाँ कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो क्वेश्चन और जनरेट होता है। लेकिन कोई ना, रिव्यू बहुत अच्छा था, मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और अब ये चीज़ मेरे को बहुत दिनों तक याद भी रहेगी, पूरे लाइफ टाइम, जिसके कारण मुझ में चेंजेस आए। मैं अपने रिसर्च बेस्ड थिंग्स को थोड़ा और इम्प्रूवमेंट लाऊंगी और इन चीज़ों को नेगेटिव वे में नहीं लूँगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओ आर्टिस्ट, हाय। एंड अपना आर्ट तो दिखाओ। ओए देखो पहले वीडियो बना रही क्या बोलेगी मुझे बताओ ना बुआ। हाँ अभी बता रही हूँ। बुआ ये हमको मिले हैं कुछ पुराने दस्तावेज जले हुए। मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, अब मैं इसमें खोज कर रही हूँ कि हमें क्या क्या एविडेंस मिल सकते हैं जो कि अभी भी बाकी है। खोज करो खोज। ये देखो कितना नया पुराना आर्टिकल जर्नलिस्ट का मिला है हमें। वाओ, ये अपने प्रोजेक्ट में लगाएंगे। इसमें लिखा है कायस्था वर चाहिए। सी गाइस, हम ऐसी कटिंग कर रहे हैं प्रोजेक्ट में लगाने के लिए और हमने अभी और कटिंग करके रखी है। मैं आपको हमने पेपर को ऐसे काटा है। अपना इंट्रो दो। I'm शिवांजलि सिंह, I'm from बिहार। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या कर रही हो? बस गुन्नू ने बुलाया, मैं आ गई। अरे देखो इतना प्यार करते हैं मुझसे लोग। ये भी मेरी एक सब्सक्राइबर है जो कि मेरे लिए आई है बिहार से स्पेशली मुझसे मिलने। गुन्नू के कला देख के मोहित हो गए। मूवी हमने ये जलाया पेपर, जानते हमका तो ये डर लगता है। इसको पहले उधर पटक दे। अब देखना गाइस, ये देखो ये जला दिया। इसके नीचे अपन ये डालेंगे। ओ भाई बुझ गया क्या? नहीं काला जादू हूँ। यूट्यूब में जादू यूट्यूब में डालने लायक तो नहीं है, फिर भी वीडियो बना लेते हैं। क्या है, प्राइवेट में डाल देंगे सिर्फ अपने दोस्तों को शेयर करके। अभी भी खिचड़ी पक रही है क्या? नहीं, कलेक्शन उसी को इधर ला देते। इतना उठक बैठक कर रहे हैं हम, क्या बताएं। आंखें जलन करने लगी, आगे जल गया। डिजाइन के चक्कर में देखो ऐसे भी आग जल जाती है। ठीक है बन गई। स्वाहा, माचिस भी जला दी। हे भगवान, हे प्रभु, हे प्रभु ज्यादा संकट में मत लाना प्रभु। ओ भगवान, इतना पता चला पूरा ही पेपर। अबे जाल जल्दी ला। नहीं मार रहे।